Hello, everyone. Welcome to this very special episode of Dian Talks, a special discussion, a special conversation on the Chakma Hajong issue with our esteemed guest panelist from Namsai. We have with us Mr. Chow Khatia Manpung. He is an educator, also a social activist, और इनका एक खुद न्यूज़ चैनल भी है. Then we have on to my left Chow Montu Chawloji. He is a Khamti youth leader from Namsai. He is also a scholar. And next to me on my left we have Chow Therenja Mantau. He is a scholar from Khamti community. He is also from Namsai. At the same time, we are being joined by Dipankar Khashnavish, who is a key observer of Chakma issue as part of the Azim Premji University. So, Dipankar sir, if we are audible to you, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? सुनाई नहीं दे रहा सर. No, I don't. Thank you so much. Thanks for a very enriching discussion. I appreciate the fact that while I was introduced by you, I just want to make a little more clarity on my perspective, why I am here. So I met Prahlad in Azim Premji University, and as part of our course, I worked with him and few others on the Chakma charity on Pradesh. So whatever understanding I have is purely based on whatever documents or books or articles I have read, right? And though I visited very briefly once Arunachal long back, the border area from Assam side, but I have not been to Arunachal Pradesh. I have not stayed there. So all my understanding is secondary understanding. I just have three quick points to make. Given a person who is, as an Indian, as a citizen, as a human being, like everybody else, like you people on the panel, otherwise, I would be very happy to see that this particular dispute or problem or whatever you call it is going on for decades. So that reaches some level of solution, if I may say, so that ultimately people will be happy that they have some stability in their house, right? Nobody wants to stay with some uncertainty, right? Whoever it is. So that is where I told Prahlad that I will be very much interested to explore some way and understand it better, and if any which way I can contribute by talking to others or reaching out to other people, I will be happy. And he invited me. I am thankful for that. Second observation from my side is that the awareness about people about this particular issue outside Arunachal Pradesh, maybe outside Northeast, outside maybe Northeast it is there too. I am connected to Northeast. My wife is from Assam, so I have traveled to Assam and some other states. But definitely I can say that outside of Northeast, the awareness of this particular issue is very, very less. Right? So people don't even know that it exists. And if people don't know, they will never even feel like getting involved in and if people are never involved, they will never give its support, right? So it must be known to people who are from Andhra Pradesh and other parts of India, who are
community and in some other different states, Mizoram, Tripura, but not no. So this is a very good initiative you have started. I understand this is the first episode, and I was very happy. I see that you are speaking in Hindi, and I am hoping that you have in some forum so that people outside who are not very familiar with English also can understand the issue. I am speaking English, I am sorry, because being a Bengali and all my life I stayed in mostly southern India, my Hindi is not very good. But maybe to grammatical lessons. And third is, I must appreciate that given that sensitivity and so that is attached to the issue, all of you so far have spoken with utmost respect, clarity, given time to each other to speak, and I think that is a very, very start. Because ultimately, everything in the world can be resolved if people have the right intention, people talk to each other and try to meet at a common ground, right? And I think it's a great starting. So I will leave it at this. Of course, I am not expert at all. I might in the subject itself, but I am a television, and all of you on this panel, which one way I can help or contribute or connect, I will be happy to do that. I am listening very intently. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. You rightly said, talking is better than not talking. ये तो सिर्फ एक शुरुआत है. This is just a beginning, and it's a very good positive beginning. And we really hope that this discussion, it gives a way forward, ultimately to resolve this issue. So with that hope, we have come here together, sitting together, and trying to discuss these issues, understand each other's perspective, so that in days to come, we resolve this matter amicably once and for all. And thank you for input, sir. Now अभी हम लोग जो है नेक्स्ट इशू में दूसरा पॉइंट में जाएंगे. द अनदर पॉइंट इज विच इज अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज कि ILP को लेके, इनर लाइन परमिट को लेके. इनर लाइन परमिट जो है चकमा लोगों को दरकार नहीं होता है अरुणाचल में. सिंस 1964 इनर लाइन परमिट जो है कभी भी इम्पोज नहीं किया गया है. हम लोग इनर लाइन परमिट नहीं लेते हैं. लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इनर लाइन परमिट लेना चाहिए. तो मनपुंग जी, आप अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहेंगे? हाँ, रिगार्डिंग द सेकेंड पॉइंट अरुण जी सर, ये कि 2013 में जो जजमेंट दिया था हाई कोर्ट से, ये कहा गया था कि चकमा हाजोंग लोग को एक गवर्नमेंट का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का अंदर इसको सेटल किया गया था. इसीलिए उनको ILP का ज़रूरत नहीं होता है. ये आपका जजमेंट था, ठीक है, 2013 का. Am I wrong? Yeah, in that line. Yeah, in that just specifically ILP वाला बात. Correct. हमारा कहना ये है कि अभी इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में आपका जो जजमेंट है वो 342 आर्टिकल का सब कॉन्ट्रेडिक्ट करता है. मतलब जो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में, फिलहाल शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में चकमा और हाजोंग का नाम नहीं है. तो इस चीज़ को देखने से तो आप नॉन APST होता है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन. क्योंकि आप अभी ST नहीं हुआ तो यू आर नॉन APST, जस्ट लाइक मद्रासी, बिहारी, आसामी जैसा है. तो अगर इनको ILP लगता है तो आपको भी ILP होना ज़रूरी है, नहीं तो वो कॉन्ट्रेडिक्ट करता है वो. और आप जो कहता है मतलब सिंस 1964, वो ऐसा बात नहीं है. BEFR एक्ट का वायलेशन तो 2013 तक हुआ था. सो इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इफ़ यू आर नॉट अंडर द प्रेसिडेंशियल वो लिस्ट में, ST लिस्ट में नहीं आता है, तो यू हैव टू हैव ILP एंड यू हैव टू कम अंडर BERF मतलब एक्ट का अंदर आना पड़ेगा, 1873 एक्ट. मेरा ये मतलब कहने का राय है. मतलब Okay. Montuji, do you want to add on to that? According to मैंने ये 2013 का जो verdict है, the verdict clearly says that the Chakmas and Hajongs were settled in that region mainly
due to the permission obtained from the competent authority. That's why they are settled in that confined area. On that ground, they should not require ILP. This is the main verdict जो दिया था. लेकिन उसी में जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किए थे, जब वो लोग बोला था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सहायता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके ही उन लोग को बिठाया था, इसलिए आईएलपी का कोई ज़रूरत नहीं है, जो वर्डिक्ट है हाई कोर्ट का 2013 में. तो इसलिए हम लोग अभी जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो पॉइंट इसमें आ जाता है फिर कि वेदर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्या सिस्टम से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कौन कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको सेटलमेंट यहाँ में देने के लिए. शायद ओनली जैसे कि आप लोग पहले बोल रहा था यूनिलेटरल डिसीजन हुआ था ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा एम्बिग्यूअस है, लूप होल्स है इसमें. इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम, दोज हु मेड दिस डिसीजन also made somewhere or somehow there were some loopholes in this regarding the settlement of the Chakmas and Hajongs into those regions where they are being settled now. So मेरा वो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ गलतियाँ हो गया इसमें, क्योंकि क्लियर कट वो लोग भी मतलब ये है वो है ये चीज़ बोल के वो लोग का भी अभी ये नहीं था उस समय. लेकिन अभी बोल रहे हैं द कोर्ट सेज नाउ दैट द Chakmas and Hajongs were settled on taking decisions and taking permissions from the competent authority. तो ये competent authority कौन कौन है, कैसे कैसे है, वो भी is a matter of discussion. तो ये मैं कहना चाहता हूँ. ठीक है. I would like to give my comment with respect to this particular ILP issue, with a special reference to Chakma Hajong, and overall with respect to the 2013 Honorable High Court judgment that Chakmas and Hajongs are deemed fit and deemed thought to be like indigenous of Arunachal Pradesh. This is not express, this is implied. दो शब्द होते हैं, एक्सप्रेसली इम्प्लिसिटली, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली. अभी इसमें बहुत कुछ कॉबवेब मालूम है ना आप लोगों को, मकड़ा जाल. It is very much connected with so many trivial other topics. Now coming to the main point, when we talk about ILP, inner line permit, we should be precisely, we should have proper knowledge about BEFR Act 1873. अभी 1873 BEFR Act, आप सोचिए 1873 को फॉर्मुलेट किया गया, ये बनाया गया, एक पास किया गया ब्रिटिश रिजिम में, कॉलोनियल एरा का समय का ये कानून है. वो लेजिस्लेशन जो BEFR Act 1873 है, अरुणजीत जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ दैट लेजिस्लेशन. आपको वो जो मोटिव है वो BEFR Act कॉन्स्टिट्यूट करने का, वो इंटेंट को समझना है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझना है कि वो लेजिस्लेशन, वो कानून क्यों पास किया गया. बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक है, सदिया फ्रंटियर ट्रैक है, अभी नेफा अरुणाचल प्रदेश, द एयर्सवाइल नेफा, इट वाज ए फ्रंटियर ट्रैक. तो ये जो नागा फ्रंट, ये जो फ्रंटियर ट्रैक्स को प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो BEFR Act 1873 को पास किया गया था. दिस वाज द इंटेंशन ऑफ दैट लेजिस्लेशन, इंटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट. नंबर 1, वेरी वेरी क्लियर. नंबर 2, अभी चकमा लोग आया कब है, सी प्री एंड पोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है. जैसे कि आजकल IPC नहीं है, लेकिन क्राइम किया कब कमिट हुआ है, व्हेन IPC सबसाइडेड, तब आपका क्राइम कमिट हुआ था. तो आपको कौन सा कानून में बुक किया जाता है, IPC में बुक किया जाता है. अभी जुलाई 1 तारीख 2023 का बाद आप क्राइम कमिट करेगा, यू विल नेवर बी बुक्ड एज पर द IPC, यू विल बी बुक्ड एज पर द भारतीय न्याय संहिता 2023. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ ना, क्या बोलते हैं, नॉट कट ऑफ, दैट पर्टिकुलर लाइनिंग, थिन लाइनिंग, कि 1964 को चकमा हाजोंग इमिग्रेशन होता है, उसको यहाँ भारतीय ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट उसको सेटलमेंट करता है. एक्ट पास हुआ था उससे पहले. अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट जब कोई कानून पास करता है, इट बिकम्स ए प्रेसिडेंट, ये कानून बन जाता है ऑटोमेटिकली, ये एक तो गवर्निंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बन जाता है. एंड एवरी जजमेंट पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड द एपेक्स कोर्ट बिकम्स ए लॉ.
by virtue of that judicial system. Now अरुणजीत जी आप हमको बताइए, we have got two temples, हमारा पास दो टेम्पल है, one is legislation, one is judiciary. कौन बड़ा है इससे? Can you tell me sir, whether legislation is important or whether judiciary is important, whether legislation is over the judiciary or whether judiciary is over the legislation? What will be your comment sir? After that I'll continue. सर सबसे पहले तो इस चीज़ को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर हमको सिर्फ आप प्रिसाइजली ये बताइए, लेट मी कंप्लीट आफ्टर दैट. ओके सर, सिर्फ आप हमको बताइए लेजिस्लेशन टॉप में है ना जुडिशरी टॉप में है? सर सबसे पहले तो ये लेट्स Okay. गेट बैक ऑन ट्रैक. Yes, yes. आईएलपी को लेके ना, हाँ पे को लेके कीजिए. आईएलपी एंड द 2013 जजमेंट. ओके, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. नहीं सर, एक्चुअली मेरा ट्रैक अभी मिसगाइड हो जाएगा, सॉरी, हम खत्म कर लेगा तब तो. Point में मेरा मैं आई एम स्टिकिंग टू द मेन पॉइंट. मेरा कहने का मतलब है इनर लाइन परमिट अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलता है कि इट इज डीम्ड फेल्ट कि ये लोग ऑलरेडी परमिटेड है बाय ड्यू कंसर्न ऑफ द हायर अथॉरिटीज, वो हायर अथॉरिटी को एक्सप्रेसली इट इज द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, खत्म. अभी आप एक बात बताइए, आपको बेफर एक्ट मना करता है, प्रोहिबिट करता है इलीगल एंट्री इनटू अरुणाचल प्रदेश विच इज अ ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया. अभी सी इसलिए मैं बोल रहा है ना, देर आर सो मेनी कनेक्शंस. आप लोग डायरेक्ट एफ और अपील में नहीं जा सकते. एफ और अपील समझने के लिए बहुत कुछ होता है कानून में. टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट यू हैव टू कनोट, यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू ब्रिज सो मेनी थिंग्स टुगेदर. बहुत खिचड़ी है ये, तब जाके आपको पिक्चर क्लियर होगा. अब आईएलपी कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आ रहा है, अब आईएलपी का लेजिस्लेशन के इंटेंट को आपको समझ में नहीं आ रहा है, जुडिशरी क्या कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेजिस्लेशन क्या करता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है. जुडिशरी सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करता है. एंड जुडिशरी ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया? जुडिशरी ने देखा कि देयर इज नो सच प्रोविजन प्रेस्क्राइब इन द लॉ प्रिवेलिंग टिल टुडे दैट शैल बार द चकमास एंड द हाजोंग्स entry into Arunachal Pradesh, which is a protected land by virtue of Before Act 1873. ये हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया लॉ को, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जुडिशियसली सोचा क्योंकि इनको ऑलरेडी परमिटेड है एंट्री इनटू दैट प्रोटेक्टेड एरिया. देयरफॉर दिस कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को अपना जुडिशियस माइंड को लगा के उन्होंने जजमेंट पास किया कि इसको एलपी का कोई जरूरत नहीं है. Not directly, they are not permitted directly by the Before Act. They are directly prohibited by the Before Act 1873, which is into play till today. Before Act अभी तक प्ले में है, Before Act अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट 2013 जजमेंट जब देता है कि चकमास डजंट नीड एनी आईएलपी, वी रेस्पेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट, एवरी इंडियन सिटीजन रेस्पेक्ट्स इट. लेकिन एक बात है, एक कानून बनना पड़ेगा हमारा स्टेट. देखो फिर अभी एक तो चीज कनेक्शन में आएगा. अरुणाचल प्रदेश में इलेक्टेड 60 एमएलए है, इलेक्टेड 60 रिप्रेजेंटेटिव्स है, एंड दिस इज अ फेडरल यूनिट ऑफ द ग्रेटर इंडियन यूनियन. एक फेडरलिज्म चलता है यहाँ पे, जैसे कि पार्लियामेंट में लॉ मेकर्स बैठता है, अरुणाचल असेंबली में 60 एमएलए, वो लोग लॉ बनाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बोनाफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश. उनको देखना पड़ेगा कि एट पार द वेलफेयर ऑफ द 26 मेजर ट्राइब्स, एट पार विद द वेलफेयर ऑफ द 105 अरुणाचल सब ट्राइब्स, एट पार विद द 2 कम्युनिटीज चकमास एंड हाजोंग. मैं लेजिस्लेशन बनाऊं तो कैसे बनाऊं? शैल आई परमिट? अभी आप बोलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट, आप लोग कितना पिटीशन फाइल किया, आप लोग कितना वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को आप लोग बोला कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये भी बोला है कि कंटेम्प्ट भी आप लोग को फाइल किया जाएगा. नेशनल ह्यूमन राइट्स भी बोला, दे हैव इवन सबमिटेड देयर दिस वन, उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट शुड कंप्लाई विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट 2013 का. अभी आप बोलिए, जब एमएलए लोग का इंटेंशन है कि हमारा बोनाफाइड को हमको पहले प्रोटेक्शन करना है, there will be some law formulated in coming days with respect to ILP to the. This is very debatable, very debatable. We can never accept only just because of one honorable high court judgment. Honorable high court judgment can never dictate the legislation. Thank you sir. हमको इतना ही बोलना है, कभी भी जुडिशरी लेजिस्लेचर को डिक्टेट नहीं कर सकते. थैंक यू मंताओ जी फॉर
expressing your thoughts Thank so you. clearly. Thank you. लेकिन इसमें एक चीज़ जो है मैं भी इसमें क्लियर करना चाह रहा हूँ सर ना, कोर्ट ने ये सेम मैटर को कोर्ट 2013 में सुना. ए पिटिशन PIL वाज फाइल इन 2010, तो उसका जजमेंट 2013 में आया. तो नाउ इफ वी आर क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द कोर्ट, तो दैट इज़ डिफरेंट इशू. लेकिन जो कोर्ट ने कहा है, वो कोर्ट ने ये कहा है कि सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन ए पॉलिसी डिसीजन, इसमें पॉलिसी डिसीजन को अंडरलाइन करना पड़ेगा सर. सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन ए पॉलिसी डिसीजन टू सेटल द चकमास एंड हाजोंग्स इन अरुणाचल प्रदेश, and this was done in consultation with the state at that time, they are to be treated as resident of that place, that particular place. तो इसलिए जो है it is implied that they have, when the policy decision was taken, when who took the policy decision? The government of India. Who is the authority over the BEFR Act? Who is actually can permit settlement और या तो बोले तो किसको लगना चाहिए, किसको ILP नहीं लगना चाहिए, उसका डिसीजन कौन लेगा? दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वाज द अथॉरिटी. सो कोर्ट ने ये कहा है कि उस ILP कानून का, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का उसका जिम्मेदार है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को, चकमा हाजोंग लोगों को यहाँ लेके आई, दैट मीन्स दैट उन लोगों को, चकमा हाजोंग लोगों को उन्होंने परमिशन दिया वहाँ बैठने के लिए, और उनको ILP की दरकार नहीं है. तो कोर्ट ने ये कहा है. तो इसलिए मुझे आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम पे कोर्ट का जो विजडम है उसको गलत ठहराना कितना सही है या कितना गलत है. बट अगेन, since we are only discussing Yes, so yes. that your perspective can come out और हम लोग अपना perspective को दे सकें. So फिलहाल तो this order of the Supreme Court, High Court is not overturned by the higher court. नहीं, उसके लिए SLP गया हुआ है. It's not overturned yet. वो SLP है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है. लेकिन अभी तक उसको ओवरटर्न नहीं किया गया है सर ना. तो टिल देन एटलीस्ट वी कैन से दैट बाय द वर्च्यू ऑफ दिस गुवाहाटी हाई कोर्ट दैट ILP इज नॉट implemented for the Chakmas and Hajongs. Okay sir, last. That is a settled truth, you know, like एक बार हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी, सेटल लॉ. सर ये उसमें कोई और डिबेट नहीं कर सकते. 2 पॉइंट हो गया, हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करते. ये आपका लास्ट पॉइंट का हम लोग इसलिए डिबेट ही कर रहा है. वी आर नॉट सो मच, इस बात में हम लोग ज्ञान भी नहीं है अभी, जस्ट डिस्कशन कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है सर. तो ऐसा है ना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, बस मैं ये बोल रहा हूँ. हाँ. कि मतलब जो 2013 में जो जजमेंट दिया था, ठीक है, आप वहाँ लिखा हुआ डीम्ड, मतलब ना कि उनको लगेगा ही नहीं. हाँ. तो यू सेइंग दैट इसीलिए नहीं लगेगा कि वी आर रेसिडेंट, मतलब आप इस जगह का रेसिडेंट है. सरकार ने उनको बिठाया है, इसलिए उन लोगों को, चकमा लोगों को उस जगह का रेसिडेंट बना दिया. हाँ, उनका ही बात मैं बोल रहा हूँ. तो उसका हिसाब से मतलब ILP नहीं लगता. लेकिन आज का दिन में फैक्ट में जाइए सर, समथिंग वी हैव टू, कुछ चीज़ तो सेक्रीफाइस एंड वो होना ही पड़ेगा सर. तो नहीं तो सॉल्यूशन एंड डिस्कशन नेवर विल कम आउट. हाँ, वी आर हियर, वी वांट सॉल्यूशन. हम लोग यहाँ का स्टेक होल्डर है. हाँ, वी डोंट माइंड एनीवन क्या कर रहा है, कौन मेमोरेंडम दे रहा है, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. हाँ, हम लोग का भी एक इंडिविजुअल सोच है. हाँ, वी वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस मैटर. हाँ, कुछ ना कुछ तो बातचीत करके ही होगा. हाँ, टेबल में. तो टुडे तो वी आर जस्ट फॉर्मल डिस्कशन है, वी सब अपना पर्सनल कैपेसिटी से बात कर रहे हैं. तो ये ILP वाला लास्ट वाला बात बोलते थे सर, आज का दिन में 2025 में क्या ये वैलिड होता है? क्योंकि आज वो सोचिए, उस समय जब वो जजमेंट दिया था ऐसा सेटलर दिया था, लेकिन आज का दिन में अगर आप ये 342 का अंदर नहीं आता है प्रेसिडेंट का लिस्ट में, तो यू हैव टू कम अंडर BEFR एक्ट. अच्छा सर, इसमें ना और एक 2 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ. जो जजमेंट है उससे 2 पॉइंट जो है क्लियर निकल के आता है.
और एक सर हम लोग विजडम को चैलेंज नहीं कर रहे जज का, ये अपना ओपिनियन बोल रहे हैं हम लोग। Right, okay, understand, sir. The first conclusion that came out from this judgment, the Guwahati High Court judgment, is that Chakmas were treated as citizens. Because of that, उन लोगों को voting rights दिया गया है. Citizen of Arunachal implied here, India and Arunachal implied here. क्योंकि उसमें कहा है कि सरकार उनको लेके गई है, वहाँ बसाया है, उनको परमिशन दिया है, इसलिए वहाँ का निवासी बना दिया है. अगर आप सोचिए कि अगर चकमा लोगों को ILP लेना है तो ILP फॉर्म में आप जानते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. हम लोग तो लिखेंगे डायून से आ रहा हूँ. डायून कहाँ है? अरुणाचल में है. तो अरुणाचल में रह के क्या अरुणाचल का आदमी को ILP लगना चाहिए? ये एक क्वेश्चन है. फिर उसी ज़माने में 1964 में सर ना 65, 66, 67, 68 इसमें बहुत सारे और सेटलमेंट हुई है. विजयनगर में एक्स सर्विसमैन गोरखा लोगों का सेटलमेंट हुआ है, उनको भी इनर लाइन परमिट की दरकार नहीं है. उसी तरह से पंजाब से, हरियाणा से, सिजोसा में एक्स सर्विसमैन को ला के बसाया गया था. वैसे बाद में सब लोग चले गए, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज हैं उनको भी ILP की दरकार नहीं है, बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न. तो इसलिए जो है हम लोग ये मानते हैं कि जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन के तहत हम लोगों को परमिट दिया है, बसाया है या हमें रिहेबिलिटेट किया है, तो इसका मतलब हम लोग ये मानते हैं, ये हम लोग का इंटरप्रिटेशन है, हम लोग का पर्सपेक्टिव है कि हम लोगों को इनर लाइन परमिट की दरकार नहीं है. लेकिन आपका पर्सपेक्टिव अलग है, हम लोग वो समझ सकते हैं. इट्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, दैट्स व्हाई वी आर हियर. तो हम लोग इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे मेरे ख्याल से. नेक्स्ट टाइम और इसको हम लोग डिबेट कर सकते हैं और विद इस पॉइंट को हम और डिबेट कर सकते हैं. बिल्कुल. तो हम लोग थोड़ा ये दीपांकर सर को इसमें थोड़ा सा आपका इनपुट चाहेंगे सर. आपने तो पूरा कन्वर्सेशन सुना होगा इनर लाइन परमिट को लेके, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यस, लेकिन आपका जो एक पैनलिस्ट ने भी बोला, मैं भी वो बोलूँगा कि हम भी मैटर में एक्सपर्ट नहीं हुआ. आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It is also a court who have made a decision which has gone to the Supreme Court, and I think deliberations are also going in. I just have one point from not from this particular discussion perspective, but my limited understanding is that legislature, whether it is state assembly or the central government, passes a law. And it is the court's right to see whether the law is as per the constitution. So the question of who is above the legislature or the court, I think nobody is above each other. These are all three: executive, legislature, and bureaucracy, right? Which is headed by the Prime Minister. So the President, the Chief Justice, and the Prime Minister of the country is at the same level. And they are at each other's checks and balances. And obviously the court can come in if they feel there is a violation of the constitution. So their job is to be the custodian of the constitution, right? Now that doesn't mean that if the court is saying that certain law is correct or incorrect and makes them superior, they are just making a comment from the perspective of the constitution, and legislature can always go back and have a new law, right? So I think that is one perspective I wanted to say, that at least constitutionally all three are equal. The other point is, I think you mentioned and others also mentioned that there are documentary evidence or counter evidence. I think there has to be a forum for people to sit down across each other and share those documents, because these discussions ultimately a gateway to a larger discussion where really people see what others are saying and validate that, or go back and see whether they are the, or even I would say the support of people who are deep into analyzing the history of India, who have access to other archives, the archives you have gone into.
to find out what sort of documentary evidence is there, because whatever the government will do, there will be a documentation. There is no doubt about it. Now it may not be at one place, or it may have been in somewhere, it has not been digitized, there are not been, but documentation definitely has happened when the settlement happened for sure. Now, who they discuss, how they discuss, this is of course will be a document, but definitely there was a process of identification of space, who are there, who can be there, how it will affect the local population, and that. So I think that will be good to. Then, of course, as you rightly said, that this is the first attempt to have a dialogue, which I found it very good. Come back and see in the spirit, which again was mentioned in the discussion, that there has to be a give and take or coming to a middle ground. Because if everybody stands where they stand, then there will be no progress. So I think it's a good beginning, and yeah, that's what I wanted to say. Thank you, sir. Thank you, sir. And I think we will not further continue this discussion. Yes. इसको इधर ही समाप्त करते हैं. Next time हम लोग फिर इसी तरह से with open mind, with open heart हम लोग बैठेंगे, and then we will continue this discussion, and we can शायद दूसरे टॉपिक पे भी हम लोग जा सकते हैं. But thank you so much for coming down to Dayun इतना दूर से, and this is the first of its kind of initiative. Or we must, the Chakma community must appreciate all of you for coming here, joining us, and having this heart-to-heart discussion. Because going forward, हम लोगों को heart-to-heart discussion होना ही पड़ेगा. Otherwise, there is no solution. कितने decades तक ऐसा हम लोग इस इशू को चलता रहेगा. So और गिव एंड टेक भी होना चाहिए. बिल्कुल. There has to be give and take, Yes. compromise, understanding of each other's position. तो इन्हीं शब्दों के साथ once again thank you so much for joining Dine Talks. Thank you. And Thank you. hope to see you again soon. Thank you. Thank you everyone. Thank you. And thank you sir. Thank you.